Good morning, class. Good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Class, I just want feedback from your side. How is weather situation और इट्स लाइक कैसे चल रहा है तुम्हारे यहाँ पर? बारिश है क्या है? बारिश Heavy, है sir. इधर, बहुत Heavy rain. बारिश है। बारिश है? रात से सर। अच्छा भीगे कि नहीं फिर बारिश में? नहीं सर। नहीं क्या सर, यार? नहीं। अरे इधर तो अभी 11 से 4 लाइट भी जाने वाली है सर। 11 से 4? हाँ सर। मतलब रात को 11 से 4? नहीं सर, अभी दोपहर में है अभी। ओके। क्या तुम लोग बारिश में भीगते नहीं, कुछ नहीं, क्या करते रहते हो? अच्छा, सर ये सिचुएशन में रिक्स नहीं लेने का है। कोरोना हो जाएगा सर। बारिश में भीगने से कोरोना हो जाएगा? हद हो गई यार। तू मुंबई से है कि किधर से है? नहीं सर, मैं मालेगांव से हूँ। मालेगांव? तो अभी मालेगांव में है? यस सर। तो वहां पे ऐसे बोलते हैं क्या कि बारिश में भीगेंगे तो कोरोना हो जाएगा? सर इधर बहुत है, दिन के अभी रोज 100 निकल रहे हैं। शट। लेकिन न्यूज में, पेपर में तो बता रहे थे कि मालेगांव अंडर कंट्रोल आ गया करके, मतलब वो क्या ऐसी बोलने के लिए? हाँ सर, बीच में आ गया था, बट अभी 6 से 7 दिनों में 758 हो गए। शट। ओके। स्टे एट होम, स्टे सेफ। यस सर। ठीक है गाइस, सो कैन वी वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स फॉर अदर्स टू ज्वाइन, क्योंकि मेरे ख्याल से बारिश की वजह से कुछ लोगों को थोड़ा ज्वाइनिंग में दिक्कत हो जाएगा. सो कैन वी स्टार्ट यस सर। अराउंड 11:08 समथिंग लाइक दैट? यस सर। ओके सर। ओके, थैंक यू. We'll start. It's already 11:08. यस सर। Okay, so class, simply tell me who are familiar with something in Python. See, there is one topic, there is one unit, it's on functional programming. And in our lab session, we are supposed to do experiments using Haskell language. But directly, if I'll move to Haskell language, then understanding this thing will become a bit tricky. So I was thinking that initially I'll go with a familiar language with you. That is, I'll explain some concepts in Python, and then in next session we'll start with Haskell. So this unit, the current unit that I'm going to start, that we'll see in Haskell language, and some part of one unit is remaining, like that event handling and coroutine and all. That also we'll do it in next session. So I just want to first complete with this part. That it's like functional programming and all. So, who is familiar with functional Python in your class? A bit of Python. I'm not asking for expertise in Python. थोड़ा बहुत भी Python का बॉस, छोटा बहुत for loop भी लिखने को आया तो भी बहुत हो गया. यस सर। Okay, so in chat box only now Shubham is saying yes, Rahul yes. Then I'll come to know na, how to explain this thing. Okay, so let us start with this thing. So some of you might not be familiar with Python, and others will be familiar with the Python, most of you. But doesn't matter. Let me start with to define data types and all. I can directly start with this. For example, if I'll write x is equal to 10, there is no semicolon in Python, and then I can simply use print to print the value of x. So it has printed 10. Class, this Jupyter notebook is visible to everyone. Am I right? यस सर। Okay. Yes, sir. And is my voice clearly audible? There is no breakage. Voice is not नो breaking, huh? ब्रेक सर। Okay, thank नो you. So now we are going to see important thing, which is very important as far as Python programmers are concerned or any other functional programmers are concerned. So people do, or normally students do, misinterpret like Python is a functional programming language. Why? Because when you say functional programming language means what? One line, every line is treated as a function.
every line is treated as a function. For example, if I'm writing like this, x is equal to a plus b into c, let's say divided by d, and everything, no, it's an expression, something like that, and raised to 2. So this is one function. So in C also, this equal to equations that you write in C programming, those are also functions. But C++ has more features than functional programming features. But yes, it is also there in C++. In Python also, it's like there. So this is, if some language provides such things, like you can provide one line thing, and then output of one line you can give as input to second line, and then output of second line you can give as input to third line, and so on. वो सब चलता रहता है. So you can call it as a functional programming thing, where there is one function, output of that function is given as input to second function, and so on. Then students are like कि सर ये क्या चल रहा है. कोड भी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट कोड के बाद सेकंड कोड, फिर थर्ड कोड, फिर फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होता है, ऐसा नहीं. So what I'm talking about is there are different functions. Like in Python, there are lambda functions, there are map functions, there are filter functions. So here, output of lambda function is given as an input to map function, or output of map function is given as an input to lambda function, and so on. तो मतलब कैसा, there are different things which are linked together and so on. तो ये सब चीज में ये सब चीज रहता है. तो उसको हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग वगैरह बोलते हैं. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. बट द थिंग इज कि फिर उनको लगता है कि पाइथन में लैम्बडा बहुत फेमस है, लैम्बडा मैप फिल्टर है, तो उनको लगता है कि पाइथन इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट नॉट, पाइथन इज नॉट अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Haskell is there, Erlang is there. Some of you might have heard about that Erlang language. Anyone have heard about Erlang language? ERLANG. Anyone? No? Okay. कोई बात नहीं. तो Erlang is also a functional language. Then Haskell is also a functional language. HASKELL, हैस्केल. ओके, मैं दोनों भी लैंग्वेज अपने चैट बॉक्स में डालता हूँ, तो स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम नहीं होगा. हैस्केल एंड एरलैंग. तो आई नो तुम में से कुछ लोग अभी गूगल पे जाएंगे, गूगल अंकुल को पूछेंगे कि भाई हैस्केल क्या है, एयरलाइन क्या है, स्कोप क्या है. सो एंड यू विल कम टू नो कि इतना कुछ अभी करंटली स्कोप नहीं है जितना पाइथन का वगैरह. बट ठीक है, इट्स ओके. दीज आर देयर जस्ट टू अंडरस्टैंड यू द, और जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एयरलाइन एंड हैस्केल एंड अदर थिंग्स. ठीक है. इट इज नॉट लाइक कि तुमको क्यों चाहिए, मतलब इट्स जस्ट बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स, एंड देन यू शुड बी एबल टू अप्लाई दिस कंसेप्ट्स एंड सो ऑन. That's it. And this concept that you will learn in Haskell, you can apply it in Python also. You can apply it in Java or any other languages also without any problem. Okay. So let's say in Python, if I want to define a function, then you can define a function like any other procedural language like def. My function name is, let's say, fun1 or function1, or let's say I'll write f1 with the argument as x. And what this function is doing, let's say it is doing x is equal to x plus 5, and then it returns the value, returns the modified value of x. And let's say here we are defining y is equal to 5, and we are calling this function f1 by passing value as y. We are receiving the return value in variable z, and then we are printing the value of z. Definitely value is 10 because 5 plus 5 is 10. So this is a procedural way. This is a procedural way. But let's say you want to go with a functional programming way. You want to go with a functional programming way using lambda function, or using lambda calculus. So if I want to go with lambda calculus, then what I can do, the simple thing, I can use a lambda function. जिनको पाइथन पता है उनको लगता है लैम्बडा फंक्शन मतलब पाइथन, बट ऐसा नहीं है. लैम्बडा फंक्शन सिर्फ पाइथन लैंग्वेज में नहीं है, इट्स देयर इन मेनी लैंग्वेजेस. It's there in many languages. And why it is there in many languages?
Let me show you a Google search. Present a Chrome tab and Lambda calculus. Yes. See, this is a um, Google search on Lambda calculus. So what it says is CC. A lambda calculus, also written as lambda calculus, is a formal system of mathematical logic for expressing computation based on function abstraction and application using variable binding, substitution. So basically क्या हो रहा है, जहाँ पे तुम्हारे पास वेरिएबल बाइंडिंग रहता है, सब्स्टिट्यूशंस वगैरह सब रहता है, तो ये सब चीजें तुम लोग लैम्बडा फंक्शन और ये सब चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लैम्बडा फंक्शन में अवेलेबल करके देती है. It is a universal model of computation that can be used to simulate any Turing machine. So, but जरूरी नहीं कि Turing machine, Python and all they do. You can using that. You can do more than things other than Turing machine. And I guess you are not familiar with Turing machine, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा discuss नहीं करेंगे. But yes, you can do n number of things. So, lambda calculus है, and lambda calculus is supported by many programming languages using lambda functions. It is supported by many programming languages using lambda functions. So for example, if I'm writing something like this, let's say Python, lambda calculus. So here it is saying that, okay, lambda calculus, lambda expression in Python and other programming languages have their roots in lambda calculus. So Python में भी lambda functions जो होते हैं, see here, Python lambda functions, using that lambda calculus is supported. Using that lambda calculus is supported. So if I'll open it, you can see it everything over here. Then yes, you can do a number of things with lambda calculus and so on. So here see, lambda calculus is supported with the help of a lambda function. Lambda calculus is supported with the help of lambda function and so on. So we'll go into more depths of lambda calculus. So here, please do not focus on Python concept. Please focus on lambda concepts. That वो करता कैसे, वो काम क्या करता है, and then if you know how it is working, then you can apply it in any language. Then you can apply it in any language. So moral of the story is lambda calculus is supported by almost many languages. See, some of you might have tried something on big data, or they must have heard big data. तो कुछ लोगों ने ट्राई किया रहेगा, चलो बिग डेटा सीखते हैं वगैरह, इस पे अपना लॉकडाउन में कुछ फ्री है वगैरह. किसी ने ट्राई किया क्या बिग डेटा इन दिस लॉकडाउन? यस क्लास, एनीवन ट्राइड बिग डेटा? No one? Frasan, big data not only means Hadoop. Hadoop is one of the technology that you can use for big data. So there are n number of technologies which are there for big data. Hadoop is just most popular technology in big data. ठीक है, कोई बात नहीं. So in big data there is a concept called MapReduce. In the big data there is a concept called MapReduce. So normally अगर मैं MapReduce बोलूँगा engineering students को, तो उनको क्या लगेगा? Okay, sir is talking about Hadoop because he is talking about big data. But ऐसा नहीं होता है. When someone talks about MapReduce, MapReduce is there in MongoDB, it's there in Python, it is the concept, same concept is there in Java, it's there in Hadoop, and there are many n number of things. So when someone thinks ki you are talking about MapReduce means big data, sorry, we are talking about MapReduce means Hadoop, तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है. Similarly, when someone thinks that you are talking about lambda function means you are talking about Python, वो गलत है. MapReduce हो गया, these are the concepts. Lambda हो गया, these are the concepts which are applicable or which are provided by many, or which are supported by many other languages. So if anyone knows the concept of MapReduce, he can write that code in Java, or they can write that code in MongoDB, or he can write that code in Python or any other language available in this world. So anyone who can write a code for MapReduce in Java can write a code in Python also, can write a code in any other MongoDB also. तो वैसे तुम लोग लैम्बडा कैलकुलस पाइथन में समझो, तुम लोग का बाकी सारा भी लैम्बडा कैलकुलस समझ में आ जाएगा. सो यहाँ पर अभी लैम्बडा फंक्शन लिखा है. सो लिखा x कोलन
x plus 5, x कोलन x plus 5, और इसको रन किया. So इसने क्या बोला देखो, इट्स अ फंक्शन. Which function? It's a lambda function which takes x as a argument, which takes x as a argument. तो अगर मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया और उसके एंड में अगर लिखा 5 तो चलेगा क्या? चलेगा. So lambda is a function. So according to Python lambda calculation, lambda is a function which takes some argument. So इसको मैं ब्रैकेट में डाल के इसका क्या 5 लिखता हूँ. So it will take 5 as argument where x. So value of x is 5 and what we are returning x plus 5, that is 5 plus 5 10. Student might ask मैं काम करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे 5 लिखता हूँ, चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलता. इट्स अ लैंग्वेज सिंटैक्स. तो बेसिकली तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम नहीं लिखा है. सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि लैम्बडा इज अ नेमलेस फंक्शन. बहुत सारे लोगों को लगता है कि लैम्बडा इज अ नेमलेस फंक्शन, बट इट इज नॉट नेसेसरी. Where I am not specifying the function name, so I can simply write f1, and now f1 is a function, and now let's say I'm printing f1. Now it is saying that f1 is a lambda function which takes x as argument, and I can call f1 by passing 10. So now this 10 is an argument. Now this 10 is an argument x, and what we are, and this part is returning. This part is returning. So this part is returning what? X plus 5. So it will return 10 plus 5. So it will return 15. And let's say receive it in Z, and will print Z. So it will print 15 and so on. So basically lambda functions or lambda calculus has two things. Lambda function or lambda calculus has two things. One is a input argument, which in Python is on left hand side of x, and second part is a return argument, what it is going to return, which is on the right hand side. So it will return an argument, it will do some calculations, and it will return the value. So it is 15. So basically now it's a function. Basically now it's a function. तुम लोगों को ऐसा प्रोसीजर जैसे ही होता है ना, सी के जैसा, बट इट इज लाइक आई कैन डू समथिंग लाइक दिस. Print f1 of 10, and I can reduce it in one line and so on, or I can do something like this: f1 of 5 plus f1 of 10, and let's say receive it in z, and then print z. So where this is one function, this is another function which I'm calling, I'm adding the outputs of two functions, passing it in third function, and it's like third argument, and I'm working on it. So it works fine. So basically this is lambda calculus in a simplest form, So class, any doubt till this point? No, sir. No. What about others? Any doubt? No? Good. Sandeep Sahani, do you have any doubt? नहीं सर, रुपेश नहीं है लेक्चर में. तो यहाँ पे तो नाम दिखा रहा है रुपेश मेंडेलडास करके. एंड मोहम्मद अंसारी. हाँ सर है. मोहम्मद अंसारी, आर यू देयर नाउ? ओके, मोहम्मद अंसारी का नाम तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर. ओके, अलीशा, आर यू देयर? लगता है इन लोगों को आज एब्सेंट मार्क करना पड़ेगा, आज के लेक्चर के लिए और कल के लेक्चर के लिए भी. मैं थोड़ा याद रखता हूँ. ये अच्छा है ना, मोस्ट लेक्चर ऑन करके भूल जाओ. इट्स गुड. सो अगर उनके कोई फ्रेंड रहेगा तो प्लीज कॉल कर देना, उनको बोल देना कि भाई लेक्चर में भी रह जाना थोड़ा टाइम, कभी यस नो बोल देना बीच बीच में. ठीक है.
सो सी कैसे ना, कभी कभी टीचर लोग पकड़ लेते हैं बट वो कुछ बोलते नहीं है, बट मुझे कभी कभी थोड़ा बोलना अच्छा लगता है. सो कैन आई टेल यू इंसिडेंट्स? कैन आई टेक यू 1 or 2 minutes? So it's like how teachers do catch students and all. See, Yes. I was teaching in Pune University for more than 5 years. No, so recording start नहीं किया मैंने. This is a formal. It's like आज concepts है. It's not directly part of syllabus. इसके लिए recording on नहीं है. So वहाँ पे 90% स्टूडेंट्स या तो बाइक से ट्रांसपोर्ट कर ट्रैवल करते हैं या फिर स्कूटी, और इट्स लाइक वॉक. इट्स बाजू में हॉस्टल में रहते आते हैं. देर इज हार्डली 10% स्टूडेंट हु डू ट्रैवल बाय बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाय ट्रेन. पर्टिकुलरली मैं जिस कॉलेज में सिखाता था, तो इट्स लाइक दो तीन स्टूडेंट थे, वो लेट आए थे लेक्चर में. एंड इट्स लाइक आई नो उसमें से एक स्टूडेंट हमेशा गड़बड़ करता है. उसको मैंने पूछा, सर भाई बच्चा क्यों लेट आया? तो बोलता है कि सर बाइक का टायर पंक्चर हो गया था. दूसरे को पूछा तू क्यों लेट आया? तो बोलता है सर इसका बाइक पे था. आई लाइक ठीक है, इट्स ओके. तो मैंने एक को बोला इधर आ, वो बहुत नजदीक आया, उसको पूछा कौन सा टायर पंक्चर हो गया था? एंड इज लाइक सर फ्रंट टायर था. मैंने बोला बैठ जा. दूसरे को बोला कि पूछा कौन सा टायर पंक्चर हुआ था? एंड इज लाइक कि सर बैक टायर हो गया. तुमने दोनों खगाल दिया था 4 दिन के लिए. तो बच्चे पकड़े जाते हैं ऐसा. सो इट्स लाइक दे थिंक कि ऐसा कुछ गड़बड़ होता है, बट मतलब फैकल्टी डोंट नो बट फैकल्टी डू नो. कोई बात नहीं, इट्स ओके. तो उस दिन के बाद से सब बच्चे से लेट नहीं आते थे. तुम लोगों के साथ भी हुआ रहेगा कॉलेज में ऐसा कभी कभी. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. सो this is a lambda calculus, but it is not necessary that in a lambda function there should be only one argument. You can have multiple arguments in lambda function also. For example, I can write a lambda function f is equal f1 is equal to lambda with two arguments as x comma y. Now there are two arguments, and I can now I can write some mathematical equations. Now I can write some mathematical equations like x raised to 2, or let's say y upon x raised to 2, and I can subtract this thing from 1, and this is my return value. And let's say I'm calling this function as z is equal to f1 by passing values as 10 comma 5, and let's print the value of z. Now it is telling me this value. So by looking at this example, can you tell me any application of lambda calculus? By looking at this example, can you tell me any application of lambda calculus? It's very, very, very important. Solving equations. हाँ, इक्वेशन ही है भाई. So you are right that you can use it for solving the equation, but I'm talking about real-time application, so that you will come to know कि कितना पावर कितना यूजफुल है ये. One should know the real-time application. Rahul, see, so what you are Rahul is saying that we can create function anytime. See Rahul, what you are talking is from the perspective of programmer. So think from the perspective of user. कहाँ पे यूज होता है? कैलकुलेटर, जोहान. सी, तुम लोग को मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. तुम लोगों ने सबसे पहले जब मैथ्स सी में सीखा था tan sin cos and all, you started hating क्या फालतूगिरी है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग कि ये tan cos sin थीटा कभी यूज नहीं करते जिंदगी में, फोकट में स्कूल से लगा के रखा है. एम आई राइट? स्कूल में भी 10th में मैथ्स इसकी वजह से कम हुए थे. तो बट इसका एप्लीकेशन पता है किसी को? कहाँ पे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सारी चीजें कहाँ पे यूज होती रहती है? ये साइन कॉस थीटा एंड ऑल ये सब चीजें कहाँ पे यूज होती है? एनीवन? स्कूल में एप्लीकेशन तो बताया रहेगा ना.
कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग इसको? एस्ट्रोनॉमी इज देयर, कंस्ट्रक्शन इज देयर। सीरियसली कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन में एंगल्स यूज यस होते हैं, सर। साइन कॉस थीटा वगैरह सब यूज होता है उसके अंदर। ओके। तुम लोग को पता है क्या, ये जब फाइटर प्लेन्स वगैरह बॉम्ब वगैरह गिराते हैं तो कैसे गिराते हैं पता है? मतलब सी, तुमको पता है कि यार फाइटर प्लेन जा रहा है और उसने बॉम्ब गिरा है तो ऊपर से सीधा नीचे तो आता नहीं है, प्लेन का एक स्पीड रहता है, तो बॉम्ब को भी एक स्पीड मिलेगा ना नीचे आते आते, एम आई राइट? तो बॉम्ब टारगेट को कैसे हिट करेगा? डोंट यू थिंक यू नीड सम एंगल? तो ये सब चीज़ें सब बहुत रहता है, तो ये सब यूज होता ही होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम लोगों ने डेरिवेटिव वगैरह सब देखा रहेगा ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एंड ऑल, इस सब का यूज कहाँ पर होता है पता है तुम लोग को? एनीवन नोज कहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का यूज वगैरह कहाँ पर होता है? एनीवन नोज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स एंड ऑल, पार्शियल डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ दैट, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हो, बाकी कुछ कैलकुलेट करते हो? यस। Okay, so Rahul is saying find the age of sculpture. Vinod is saying fuel consumption in rocket, speech recognition, area calculation and so on. See, अभी तुमको मुझे एक बताओ, तुम लोग को इंटीग्रेशन दे दिया और वहाँ पे dx वगैरह सब लिख के दे दिया, ठीक है? और तो प्रोग्राम को बोला ले सॉल्व कर, प्रोग्राम सॉल्व कर पाएगा क्या? तुम लोगों ने पता है कि ये एक इक्वेशन है, एक पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको अगर मैंने ये पार्शियल डेरिवेटिव का इक्वेशन दिया तो ये इक्वेशन से पता चलता है कि एक पार्शियल डेरिवेटिव है, उसके अंदर ये इंटीग्रेशन है, उसमें बताया कि ये इक्वेशन से पता चल जाएगा कि फ्यूल कितना कंजम्पशन होगा। तो प्रोग्राम जो है, पाइथन का प्रोग्राम या जावा का प्रोग्राम रहेगा, वो उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएगा क्या? डू यू थिंक? वो सॉल्व नहीं कर सकता है, तो तुम लोग क्या करते हो? प्रोग्रामर का काम क्या रहता है, कोई तो एक मैथमेटिक्स का बंदा बैठा रहता है, वो मैथ्स का बंदा उसको सॉल्व करेगा और उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में लेके आएगा। मतलब वहाँ पे साइन रहेगा, एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी और जीरो टू फाइव, इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व करेगा और इक्वेशन वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख के देगा कि भाई ये भी इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर। आर यू गेटिंग इट? सो वो जो इक्वेशन फॉर्म रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है कि तुम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, डिफरेंशिएशन किया है, उसको सॉल्व किया, और जो इक्वेशन आएगा वो यहाँ पर है। डीप लर्निंग पूरा का पूरा पार्शियल डेरिवेटिव पे पड़ा हुआ है, तो वो जो इक्वेशंस रहते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव का इक्वेशन नहीं रहता है, उसको सॉल्व करते हैं और वो सब चीजें यहाँ पर आती है और फिर उसके अंदर वैल्यूज लिखना रहता है, फिर उसके अंदर वैल्यूज लिखना रहता है, एंड दैट थिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सच थिंग, दैट थिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। और इसके लिए पाइथन में लैम्बडा और ये सब बहुत फेमस इसके लिए हुआ, बिकॉज जो भी लोग साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते रहते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में, वो लोग यही सब करते रहते हैं, तो उनको पता चला अरे ये मस्त है। वाई? बिकॉज ऑफ सच ए नेचर। पहले वो लोग सी प्लस सी में या जावा में कोड लिखते थे, उनको ऐसा कुछ लंबा चौड़ा लिखना पड़ता था यार, लेकिन नहीं नहीं, ये अच्छा है, दिस मेक्स लाइफ इजी। तो दुनिया आगे बढ़ गई और साइंटिफिक कैलकुलेशंस आगे बढ़ गए, तो पहले साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ बनाती है और बाद में रियल लाइफ में उसको यूज होता है और लोग रियल लाइफ में यूज करने लग गए, तो ये चल गया। तो आज हम लोग पिछले 4 साल से इंडिया में पाइथन पाइथन चल रहा है, बट लेकिन यूएस एंड ऑल तो काफी टाइम पहले से चल रहा है, वो लोगों ने ऑलरेडी रिप्लेस करना चालू कर दिया था एंड सो ऑन। ठीक है। सो बेसिकली एप्लीकेशंस यहाँ पर जो तुम लोग कर रहे हो वो है इक्वेशन सॉल्व। तुम लोग को किसी के कुछ तो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? पार्शियल डेरिवेटिव दिया रहेगा या इंटीग्रेशन दिया रहेगा, डिफरेंशिएट करने के लिए दिया रहेगा, या और कोई सीरीज दिया रहेगा, वो सीरीज का पूरा यहाँ पर इक्वेशन रहेगा,
solve karo, you will get the answer, doesn't matter. There is no need to write equations like C or Java. मस्त लिख दो, दिस इज अ लैम्बडा फंक्शन, कॉल इट, एंड देन यू कैन मैप इट ऑल्सो. जब तुम लोग मैप देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये तो जावा में भी हो जाएगा, सी प्लस प्लस में भी हो जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू लैम्बडा इन कोलैबोरेशन विद मैप एंड फिल्टर, पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड दिस इज लैम्बडा फंक्शन. गाइस, तुमको पता है क्या कि सबसे पहले प्रोग्रामर्स कौन थे? हु वाज द इनिशियल प्रोग्रामर्स? एनीवन नोस? और हु वर द इनिशियल डेटा साइंटिस्ट्स? दुनिया के सबसे पहले प्रोग्रामर्स मैथमेटिशियंस थे. द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्रामर्स जो थे वो लोग मैथमेटिशियंस थे. डेटा साइंस का भी जिन्होंने स्टार्ट किया था वो सब मैथमेटिशियंस थे. एवरी वन वॉज मैथमेटिशियन. क्यों? प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए? साइंटिफिक कैलकुलेशंस करना है. तो हु डज द साइंटिफिक कैलकुलेशन? साइंटिस्ट. एंड दिस कैलकुलेशंस आर नथिंग बट व्हाट? मैथ्स. दोज वेर फिजिक्स पीपल, केमिस्ट्री पीपल्स एंड ऑल, जो मैथमेटिक्स में काम करते थे. एंड सिमिलरली फॉर डेटा साइंस ऑल्सो. And that's why if you want to become more successful, then please focus more on maths. अच्छा रहेगा. ओके, सो ये लैम्बडा हो गया अपना विथ x, वैल्यू x एंड वैल्यू y. So where 1 minus something you can solve as a equation. So similarly you can do a number of things with lambda function. For example, I can write first lambda function as this: f1 is equal to this. Then I can write another lambda function as f2 is equal to lambda, let's say x comma y. So where the computations are 1 minus x divided by y raised to 2, that is power of 2. And now z is equal to f1 of 5 comma 6 into f2 of 7 comma 8. And then let's print the value of z. So now here x and y are argument names. X and y are formal argument names. So you can have anything. No? I hope everyone knows the difference between formal arguments and actual arguments. So here x and y are formal arguments, whereas 5 and 6 are actual arguments. So value of x is 5, value of y is 6 over here. Here value of x is 7 and value of y is 8. And so on. So now this is one function, this is another function. Output of two functions is taken and used to perform some tasks and stored in some other variable, and that you can use it for something else. So this is something called as lambda calculus. This is something called as lambda calculus. This is one function, this is second function, and this is a third function. So, and this is called as functional programming. This is also called as functional programming. So lambda calculus and functional programming. So lambda calculus and functional programming तो simple है, but इसका power तब बढ़ जाता है when you add, let's say, filter, or when you add map with it. So we'll start with map first. So what is map and what is filter? So let's say you have an array. Let's say I have a list with values as, let's say 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5, and now I will apply map and lambda function on it. Now I will apply map and lambda function on it. Let's say f1 is my lambda function, which take x as an argument and returns x square, that is x raised to 2. Now I'm going to combine it with a lambda function. So sorry, I'm combining it with map function. So what I'm saying, map. So what I'm asking is, map every value of list to the f1 function. Map every value of list to the f1 function means what? Take one value of list, take one value from list, pass it to map f1 function. Then take second value from the list, pass it to f1 function. Then third value of a list, pass it to f1 function, fourth value, fifth value, and so on. So we are basically asking it to pass one value from list at a time to f1 function. Basically, we are asking it to pass one value from a list at a time to f1 function. So that is mapping, na? That is called as mapping. Take one value, pass it here. Second value,
third value, fourth value, and fifth value. So this is what is done by mapping map function. This is called as mapping. So you are mapping one value at a time. So it's a proper mapping. And now what I'm going to do, so this is a concept of map. This is a concept of map. And now what I'm going to do is a Python thing. Now it is saying it's a map object. Obviously, this is a map object ना, एक वैल्यू लिया इसको पास किया, सेकंड मैप किया, थर्ड वैल्यू पास किया, फोर्थ एंड सो ऑन, एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन मैप ऑब्जेक्ट. But I don't understand what it is, so I can convert it into list. This is a Python now. This is a Python now. So 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, and 5 square 25 and so on. 5 square 25 and so on. So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LST2 and as a 6, 7, 8, 9 and 10, and I'm passing it as x, y. ये चलेगा क्या? Anyone who knows Python? Will it work? Yes, sir. Okay, so here let's say I'm writing x divided by y. चल गया? Yes, it worked fine. It worked fine. अभी हम लोग थोड़ा जरा पाइथन और सॉरी जावा के कंपैरिजन में इसका बेनिफिट देखते हैं. जावा या सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में इसका बेनिफिट देखते हैं. सी, अगर इसको मैं प्रोसीजरल वे में लिखूंगा, अगर इसको मैं अगर सी प्लस प्लस किया या लेट मी राइट पाइथन कोड इन सी प्लस प्लस, लेट मी राइट पाइथन कोड इन सी प्लस प्लस वे और जावा वे, तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा, फॉर आई इन range 5. This is a for loop which will start from 0, will go up to 4, 5 is the termination condition, and then I can call function f1 by passing lst of 1, sorry, not lst of 1, lst of I, comma lst of I and lst2 of I, or let me write it as list1 and list2, list1 of I and list2 of I. So I'm passing it, and let's say I'm creating another empty list, z is equal to empty list, and then I'm writing let's say x is equal to this. What is lambda function? How can I forget it? So this is my lambda function. Let me store it in, let's variable say p, and then we are writing z dot append the value of p, and outside for loop we are going to print the value of z. Same answer. तो कोई बोलेगा सर इसको हम लोग सिंपल भी कर सकते हैं, क्या करेंगे? मैं यहीं पे z dot append लिख दूंगा. Okay, that is also right. I can write z dot append, means I'm calling this lambda function f1 by passing first argument, second argument. First argument is from list 1, second argument is from list 2, will be received in variables x and y, and this is the operation that I want to perform. I'm getting same thing, but now see the difference. Here you need to write for loop explicitly. Here you need to write for loop explicitly, and here do you need to write that for loop explicitly? No, it's doing its own task on own, so there is no need to write for loop, and there is no need to handle everything कि like for I से start करने का है, कहाँ तक जाने का है, and so on. इतना क्यों दिमाग लगाने का? Thing can be done it here with the help of map function, and it's okay. And as a student or as a researcher or as a programmer, you are more happy with map function ना, as compared to this for loop लगाओ, उसको एक एक करके चलाओ, and so on. Then students are like कि एक एक करके चलाने में क्या प्रॉब्लम है? एक एक करके चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but nowadays our computers, they are having vector instructions. Means what? You can process multiple equations in one set. For example, if you have array and you want to process the array, your vector your system can process entire array in one operation, in one clock cycle. Your system can process entire array in one clock cycle or two clock cycles, something like that, depending on what instruction you are trying to execute. But here in for loop, you need to write more, you need to go for more number of clock cycles. So here it requires less number of clock cycles, whereas this requires more number of clock cycles. It requires more code also, and definitely it is going to be slow. Whereas this thing is fast, it requires more, sorry, it is fast, it requires less CPU cycles, it requires less memory also. So people are like कि जब सब ये better है,
तो ये सब क्यों लिखने का? एंड बिकॉज ऑफ सच फंक्शनलिटीज एंड ऑल, this Python become popular, or this lambda calculus in Python become popular. So a simple lambda calculus without map is not that powerful. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको? एक वैल्यू लो, उसको पास करो, सेकंड लो, पास करो, जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर लूप में किया ना, एक एक वैल्यू इसको पास किया, पहले एक पास करो, फिर सेकंड पास करो इन फॉर लूप. But instead of that, if we'll use map it with it, instead of that, if we'll use map with it, तो क्या हो जाएगा benefit? The biggest benefit is there is no need to write for loop, execution speed बढ़ जाएगा, memory requirement कम हो जाएगा. So where it is a mapping, and this list is not a lambda calculus concept, this is a Python. So it says, okay, if you want output in a list format, use a list method to convert it. If I want it in, let's say, tuple format, it's in tuple format. If I want it in set format, I can edit it in set format or anything that I want. But I want it in list format, तो मैंने list में डाल दिया. So this is a map along with lambda, where what we are doing, where we are passing one value at a time to lambda function. So you are doing it or compiler doing it, compiler doing it. You don't have to do it. And that is how map function works. That's how map function works. Class, any doubt in this thing? Any doubt in map function? No? Okay, good. So now I want you to tell me one application of map function. रियल लाइफ में मैप फंक्शन कहाँ लगाओगे? ये लैम्बडा कैलकुलेशन कहाँ लगाओगे? प्लीज डोंट टेल मी कि सर वो बॉम्ब गिराएंगे. बॉम्ब गिरा के हो गया अपना, और बॉम्ब नहीं गिराएंगे. एनी अदर एप्लीकेशन? Vinod, AI, you are saying artificial intelligence is a correct answer, but it's a very broad answer. AI is a field which contains data mining, machine learning, neural network, fuzzy logic, genetic algorithms, and everything has a different things. Shivam, again, MI, as I told, it's a very broad field. Can you tell me one particular application? जैसे तुमको पता था कि बॉम्ब गिराने के लिए वो लोग यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं. Aman, see, my question is, lambda in a combination with map function. Lambda in a combination with map function. सी तुम लोग को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे? सी मैं तुम लोग को इतना परेशान क्यों कर रहा हूँ, या फिर तुम लोग को मैं इतने बार क्यों पूछ रहा हूँ क्या लगाओगे, कहाँ लगाओगे? बिकॉज दीज आर गुड कंसेप्ट. तुम लोग फाइनल ईयर में भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर सी पाइथन का कोड भी लिखेंगे तो भी सी जैसे ही लिखते हैं. फॉर लूप लगाएंगे, लैम्बडा फंक्शन भाड़ में जाए, सेट भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए. वो लोग सी का लॉजिक ही लगाते हैं, फॉर लूप लगाओ, ये लगाओ, उसके अंदर इन सब करते जाओ. तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. अगर तुम लोग पाइथन यूज कर रहे हो तो तुम लोगों ने यूज करना चाहिए. एंड सो ऑन. स्पीच रिकग्निशन, मैकेनिकल आर्म. Shubham is quite close to answer mechanical arm. Good. Vinod, yes, I can do it in speech recognition, but okay. So let me explain this application of mechanical arm. Let me explain this application of mechanical arm. See, तुम लोग को एक सिंपल बताता हूँ मैं, मैकेनिकल आर्म काम कैसे करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मूवी में दिखाते हैं मैकेनिकल आर्म, वैसे ही मैकेनिकल आर्म होता है. एक बॉट रहता है. ओके, for explanation, let me see, I'm not just doing just जबर जबर ऐसा. मैं प्रॉपर एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुमको समझ में कि चल क्या रहा है. आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम. हाँ, लेट मी सर्च समथिंग ऑन गूगल, तो तुमको मैं बता देता हूँ. एक इमेज ढूंढता हूँ मैं. मैकेनिकल विद कैमरा. यस, मैकेनिकल आर्म विद कैमरा. गुड, कुछ ढंग का मिल गया. यस, now I can share my screen with you. I'm sharing another tab for application. So mechanical arm with camera, share. See guys, if you will see here, कौन सा एग्जांपल लेते हैं?
Does it have camera on it? नहीं. Where is the mechanical arm with camera? Yes, here it is. My robotic arm. Good. Okay, I guess I need to switch to another screen. Another, sorry, Chrome window. जहाँ पे मैंने ओपन किया वो विंडो शेयर नहीं हुआ. So, class, can you see this thing? This image of a robotic arm with camera? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. See, now see here. This is the arm and this is the camera. You might have seen such thing in movies, no? यहाँ पे कैमरा है, वो बॉट कैमरा से देखता है और आर्म से कुछ तो भी करता है. Am I right? लेकिन तुम लोग एक चीज देखो, तुम लोग को एक सिंपल समझ आएगा. अगर कैमरा ने बताया कि ये चीज 5 मीटर डिस्टेंस पे है एट एंगल 30, कैमरा से इसने बॉट ने यहाँ पे सपोज लेट से एट दिस पॉइंट देयर इज अ प्रोसेसर, उसने कैमरा से देख के पता चला दिस थिंग इज एट 30 मीटर्स एट एंगल 30. Okay, now tell me that particular thing is at angle 30 and let's say 20 meter or 30 meter, or let's say angle 30 meter. So that is with respect to camera or with respect to arm. यहाँ से कैमरा से एक इमेज कैप्चर हुआ है. आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन. कैमरा से एक इमेज कैप्चर हुआ है जिसको यूज करके यहाँ पे नीचे जो प्रोसेसर है उसने बताया कि पर्टिकुलर थिंग इज एट 30 मीटर एंड 30 it is at a 30 meter distance with the angle of 30 degree, with the angle of 30 degree. Now this distance and angle is with respect to camera or with respect to arm? Yes, class. This angle and distance is with respect to camera or with respect to arm? So Nihal is saying with respect to camera, Rahul is saying with respect to arm, Alfred says arm, Riddhi is saying camera, Stephanie is saying arm, Aman is camera, Yash is saying arm, Nihal, if configured, then arm. खतरनाक. निहाल इज लाइक पॉलिटिकल बंदा है. हम लोग ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर देंगे. Dallas is saying arm, Rahul saying arm, Mitesh is saying camera. Okay, class, let me tell. Okay, Dhruvesh is saying camera, Mitesh is also saying camera. Class, listen, see here. You are capturing the image using arm or camera? We are capturing the image using camera. So, if I'm calculating the distance using image, then the distance is from the source of an image. Am I right? The distance is from the source of an image. And who is the source of image? Camera. So now I know the particular thing is at 30 meter with an angle of 30 degree from camera. बराबर है, from camera. और मैंने आर्म को 30 मीटर 30 एंगल पे लेके गया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इट इज लाइक ऑब्जेक्ट ऊपर है और आर्म नीचे घूम रहा है. तो आर्म जो है ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर पाएगा क्या? नहीं कैप्चर कर पाएगा. क्यों नहीं कैप्चर कर पाएगा? बिकॉज कैमरा से 30 मीटर पे. फॉर एग्जांपल अगर दो बच्चे हैं बाजू में, एक बच्चे को आंख पे पट्टी बांध के रखा है और दूसरे बच्चे को बोला है कि तू इसको गाइड कर. अब सेकंड बच्चा बोल रहा है कि एक काम कर, वो देख रहा है कि मेरे से 5 मीटर आगे वो एक मटकी इसको फोड़ने का है. अब ये इसको क्या बोलेगा? तेरे से 5 मीटर आगे फोड़ने के लिए बोलेगा या ऐसे बोलेगा 5 मीटर 2 फीट्स अवे. एम आई राइट? सी, सिंपल क्वेश्चन इज, दो स्टूडेंट्स बाजू बाजू में खड़े, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2. स्टूडेंट 1 की आंख में पट्टी है, उसके हाथ में डंडा दिया है और उसको बोला है कि जो स्टूडेंट 2 देखो इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग देखो मटकी फोड़ने का. अब स्टूडेंट 2 देख रहा है कि उससे 5 मीटर आगे मटकी है तो उसको क्या बोलेगा? 5 मीटर पे मटकी उसको फोड़, या ऐसे बोलेगा 5 मीटर के 5 मीटर पे 5 मीटर के बाद 1 फीट लेफ्ट पे मटकी वो फोड़. क्या क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन बराबर रहेगा? फर्स्ट और सेकंड इंस्ट्रक्शन? सेकंड वन. परफेक्ट. व्हाई? बिकॉज पहले जो डिस्टेंस था वो सेकंड स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में है, बट तोड़ने वाला कौन है? सेकंड स्टूडेंट और फर्स्ट स्टूडेंट? फर्स्ट स्टूडेंट. तो
उसको गाइडेंस कैसे जाना चाहिए? 5 मीटर आगे फिर 1 फीट लेफ्ट पे, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। इनपुट क्या गया? 5 मीटर। इसने क्या किया? कैलकुलेशन कैसे होगा? 5 मीटर 1 फीट लेफ्ट तोड़ दो, टूट गया। नहीं तो 5 मीटर पे डंडा घुमाते बैठेगा, वहां पे मटकी है नहीं, टूटेगा भी नहीं। सिमिलरली रोबोटिक्स में भी कैमरा अलग होता है, आर्म अलग रहता है। कैमरा स्टेशनरी रहता है और आर्म घूमता रहता है। तो कैमरा क्या बताएगा कि भाई कैमरा से 5 10 30 मीटर 30 डिग्री पे है, तो आर्म क्या करेगा? 30 मीटर पे जाएगा, 30 डिग्री पे जाएगा, घूमेगा क्या? नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन। So that transformation you can do it with the help of lambda calculation. That transformation you can do it with the help of lambda calculation. And अभी तो तुम लोगों ने सर लैम्बडा हो गया, मैप कहाँ से आ गया? अभी सपोज तुम्हारे रोबोट के हाथ में गन है। तुम्हारे रोबोट के हाथ में क्या है? गन है। ऊपर कैमरा लगा हुआ है। कैमरा देख रहा है कि यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट है, उसको शूट करना है। यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट है? 4 ऑब्जेक्ट है, उसको शूट करना है। अभी क्या होगा? कैमरे के पर्सपेक्टिव से कुछ आया, कैमरा ने बताया 4 ऑब्जेक्ट्स है, उसका लोकेशन भी बताया। अभी गन क्या करेगा? गन लैम्बडा फंक्शन भी लगाएगा और मैप फंक्शन भी लगाएगा। गन क्या करेगा? लैम्बडा फंक्शन भी लगाएगा और मैप फंक्शन भी लगाएगा। एम आई राइट? लैम्बडा फंक्शन किसके लिए लगाएगा? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई कैमरा के अकॉर्डिंगली 30 फीट 30 डिग्री पे है, मतलब गन के अकॉर्डिंगली कहाँ होना चाहिए? लेट्स से गन के अकॉर्डिंगली 30 मीटर है, बट एंगल 30 डिग्री नहीं है, एंगल 25 डिग्री है। तो वो शिफ्ट कर रहा है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो मैं क्या लगाऊंगा? मैप। तो काम हो गया। रोबोटिक्स में मैंने लगाया, कैमरा भी है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मुझे शूट करना है कैमरा गन से। सो मैप लैम्बडा फंक्शन फॉर व्हाट? ट्रांसफॉर्मिंग द कैमरा कोऑर्डिनेट्स टू गन कोऑर्डिनेट। नाउ गन को पता है कि कौन से एंगल पे शूट करना है, कितने डिस्टेंस पे, एंड मैप फंक्शन 4 ऑब्जेक्ट्स को शूट करने के लिए हेल्प कर देगा। आर यू गेटिंग इट गाइस? Yes, sir. Yes, okay. So Nancy is saying yes. What about others? Aman? Okay, good. What about Alicia? Alicia, are you there? समझ में आ रहा है? Okay. So this is how you can use map functions and lambda functions in robotics, or now if you can apply it in one field, you can apply it in any other field also without any problem. आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. So can anyone tell me other application of lambda and lambda calculus with a map? See, this is normally for mathematical operations. This is normally used for mathematical operations, and you talk about anything. मैथ्स तो आता ही आता है. अपने कंप्यूटर के बच्चे रहते हैं, वो इतना बेसिक बोर्ड बनाते हैं फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में, और उनको पूछेंगे तो बोलते हैं सर इससे पहले आज तक किसी ने ऐसा बनाया नहीं, हम लोगों ने सबसे अच्छा एडवांस बोर्ड बनाया है. और मुझे देख के ऐसा लगता है, जान दो, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो व्हाट वर्ड्स आई वांट टू यूज. क्या चल रहा है? ऐसे बोर्ड स्कूल के बच्चे बनाते हैं, एंड पीपल आर लाइक कि सर ऐसा कुछ भी बोलते हो आप, बट इट इज नॉट लाइक दैट. स्कूल के बच्चे वैसे बोर्ड बनाते हैं, उनके बोर्ड में मिसिंग क्या रहता है? मैथमेटिक्स. उनके बोर्ड से मिसिंग क्या रहता है? मैथमेटिक्स. तो लोग मैथ्स लगाओ, सब हो जाएगा. ठीक है. एनी अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस लैम्बडा along with map? Yes, class.
Driverless car. Yes, Shivam, you are right. We can use it in driverless car. For example, if there are multiple vehicles, it is coming towards car. Then car, let's say car is driving. Car is moving in one direction, and you want to check कि सामने वाले कार को उसको ठोक सकते क्या हम लोग. So अगर कोई कार लेफ्ट में जा रही है तो सामने एक कार तो नहीं रहेगा. There can be multiple cars. सो देयर यू कैन यूज इट कि अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो सामने वाली गाड़ी को ठोक दूंगा कि नहीं ठोकूंगा. अगर ठोक सकता हूँ तो मुझे स्पीड कम करना चाहिए और सो ऑन. या फिर मुझे अगर लेफ्ट से जाना है या राइट से जाने का है तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, जा सकता हूँ. दैट इज ओके. देन शुभम इज सेइंग डिस्टेंस सेंसर. यस, परफेक्ट एप्लीकेशन. You can use it for distance sensors. How can you use it for distance sensor? It is simple thing. Let's say तुम लोग सोसाइटी के नीचे लॉबी में खड़े हो या सिर्फ सोसाइटी के कंपाउंड में खड़े हो, तो तुमको क्या चाहिए कि अगर तुम लोग जहाँ पे खड़े हो वहां का लाइट ब्राइट होना चाहिए, बाकी लाइट डिम होने चाहिए. सो कैन यू यूज डिस्टेंस सेंसर? यस. तो जिस लाइट पोल से तुम्हारा डिस्टेंस सबसे कम रहेगा वो पोल का लाइट ब्राइट रहेगा और बाकी लाइट डिम हो जाएंगे. यस, यू कैन यूज इट. गुड. Mitesh, yes, you can use it in mobile manufacturing factories also and so on. Good. So let's go to next thing that you can apply along with the lambda function. That is a filter thing. That is a filter thing. So what is a filter? Let's say I don't know. Let's say I don't know how can I apply a. How can I? Let's say I don't. I want to apply a particular function, but not on all numbers. I want to filter out some numbers. I want to filter out some number. Let's say I am having a list of numbers 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5. Let's say I want to create a list of 10 numbers. Can I use range function for it? Range 0, comma 10. Will it work? Anyone who knows Python, will it work? Yes. इसने तो रेंज 0, 10 लिख दिया. मुझे तो नंबर चाहिए ना 0 to 10. कैसे करने का? यस, होता है कि नहीं पाइथन में? ठीक है, जाने दो, आराम से ढूंढ लेना बाद में. ठीक है. So now what I want only those numbers which are odd numbers. I want only those numbers which are odd numbers. So there is something called as a filter in Python. There is something called as filter in Python. So filter works similar to list, so similar to map, but in a bit different way. It works similar to map, but in a bit different way. Let's say I'm writing z is equal to filter. So to filter, I'm passing a lambda function which takes x as argument, and it checks for a condition. Let's say x mod 2 not equal to 0. Am I right? If x mod 2 not equal to 0 means what? Number is a odd number. Am I right? If number is a even number तो क्या हो जाएगा? X mod 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Sure. And I can write lambda function like this. So this is my lambda function. And second thing which I want to pass, okay, to avoid the confusion, let me write it as LST list. And here I am saying that okay, lambda function will take x as a value, and if this condition is true, then only particular element will be written. Otherwise, element will not be written. Otherwise, element will not be written. Am I missing something? Yes, I'm missing one bracket. So print syntax error not equal to. Filter function expects 2 argument, got 1. So this is a filter function. This is the first argument. This is a second argument. गलती कहाँ पे किया मैंने?
I should not write this thing in bracket. This is the mistake from my side. Yes. So this is the first argument, this second argument. So you can consider filter as a special type of map function. You can consider filter as a special type of map function which returns only those elements where condition is satisfied. Which returns only those elements where condition is satisfied. So in our case, this is a list. So one element is the past, and the list condition that you are going to check is what? X mod 2. If condition is true, X is written. If condition is true, X is written. Otherwise, it will not return X and so on. So this is a filter function, which is a specific type of map function. Class, any doubt with this filter function? No, sir. No. What about others? No, sir. No doubt. Okay, good. So, class, can you tell me one application of filter with lambda? Yes, class. Application of filter with lambda combined together. Shivam, filtering employees of same pin code. That is not a direct application. So Aman is saying image processing. So can Aman, can you please elaborate on image processing? Image processing itself is a very big field. ओके, अमन ने सब बांध छोड़ के छोड़ दिया, पत्थर मार दिया इमेज प्रोसेसिंग। यस सर, लगा देंगे। शिवम इज सेइंग filtering employee, और ठीक है, automated cars, auto focus in cameras, finding missing data fields in big files. Anurag is saying, Rahul is saying separate desired objects from the image. Anything else from anyone else? लेट्स से तुम लोग को क्या करने का है, तुम लोग को सिर्फ वही, लेट्स से देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स एंड यू वांट टू shoot only objects which are in red color, and you want to let's say leave it the objects, you want to leave the objects which are in ग्रीन कलर। तो तुम लोग क्या करोगे? रेड कलर के ऑब्जेक्ट को शूट करना है, ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को शूट नहीं करना है। सो कैन यू यूज फिल्टर ओवर देयर? 4 ऑब्जेक्ट्स है ना, कैमरा है, शूट करना है कौन से ऑब्जेक्ट को शूट करना है, कौन से को नहीं शूट करना है, यू कैन डिसाइड ना। जो भी रेड में है उसको शूट करो, जो रेड में नहीं है उसको शूट नहीं करना है। एम आई राइट? कैन यू डू दैट? सो नाउ इफ आई राइट मैप ओवर हियर, मैप, and I'm having a lambda function, lambda, let's say y colon y square. Second argument is a list. Okay, and output of map I'm converting into list. Now can you see it? These are the squares of odd numbers. These are the squares of odd numbers. तो मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कौन से नंबर्स है? लिस्ट हैज ओनली, लिस्ट हैज ऑल द नंबर्स, बट व्हाट आई वांट टू टेक स्क्वायर ऑफ ओनली, I want to take square of only odd numbers.
तो पहले मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया, और फिल्टर क्या करता है, it filter out only those numbers, it will give you only those numbers which are odd numbers. And here, using map, what I'm trying to do, this is a lambda function which takes square, or which gives you the square of a number, and this thing will give you the numbers which are odd. So odd number का square हो गया ना क्लास। तुम लोग को एग्जांपल समझा कि नहीं, ये वाला पाइथन कोड समझा ये वाला, और शुड आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम? सो शुड आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम को यस है, या समझा इसके लिए यस है? Okay, one more time please. Okay, I'll go with it. See, let's say I have a list of 10 some numbers, lst 1 comma 2 comma 3 4 5 6 7 8 9 10. So now what I want to do, I want square but only of odd numbers. I want square only of odd numbers. तो तुम लोग फॉर लूप में कैसे करोगे, फॉर लूप लगाओगे, चेक करोगे नंबर ऑड है कि इवन है, ऑड रहेगा तो स्क्वायर निकालोगे, नहीं रहेगा तो छोड़ दोगे. सो दिस इज फॉर लूप. But can we do it in using lambda function and map function? Yes, we can do it with the help of lambda and map function. So first I'll write a filter, which is a special type of map function. Am I right? Filter is a special type of map function. So which takes a lambda, first is a lambda function. Inside filter there is a lambda function which checks that whether the number is a even number or not, odd number or not. So I'm checking x mod 2 not equal to 0. If x mod 2 not equal to 0 means what? The number is a odd number, and to which I'm passing lst, and convert this thing into list. So now if I'll store it in x, if I'll store it not in x, let's say I'm storing in temp, and I'm printing this temporary. These are only odd numbers. Am I right? Now I can use this temp in a map function like this. That is equal to map lambda, which is taking y as argument and taking square of y. And for that, it is mapping is a temp list. It is mapping with temp list, and this is a output. I want to convert it into list. Convert it into list and print z. So these are the squares of odd number. These are the squares of odd number. अगर मैंने यहाँ से लिस्ट निकाल दिया तो ये चलेगा क्या? बोलेगा फिल्टर ऑब्जेक्ट है, नहीं चलता. तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट नोट कर रहे हैं. अभी ये दो अलग चीज है. ये पहला लैम्बडा विद अ फिल्टर विच इज अ स्पेशल मैप फंक्शन, वो तुमको ऑड नंबर दे रहा है, और उस ऑड नंबर को हम लोग सेकेंड मैप को पास कर रहे हैं जो उसका स्क्वायर ले रहा है. अभी मैं बस क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ. ये टेम्प को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ. कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ? जो टेम्प के सामने लिखा हुआ पार्ट है उससे रिप्लेस कर रहा हूँ टेम्प. दैट्स इट. So now this part is giving odd numbers. जितना जो part है यहाँ से यहाँ तक, it is giving only odd number. It is giving you only odd numbers. And जो second part है ये वाला, उस numbers का square निकाल रहा है. और हम लोग मैप क्यों लगाया? बिकॉज ये तो लिस्ट के फॉर्मेट में है ना. एक नंबर है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर मल्टीपल नंबर्स है. यहाँ पर क्या है? मल्टीपल नंबर्स है. तो हम लोगों ने मैप लगाया, तो हर एक नंबर का वो क्या करेगा? स्क्वायर करके देगा, like this. So similarly, you can write function over here which will tell you whether the color is green or red. It will tell you whether the color is green or whether it is a green color or red color. Whether it is a green color or a red color. तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे green color red color हो सकता है? Yes, you can identify whether it is a green color or red color easily without any problem. So class, any doubt in this thing? Okay, no doubt. Um,
तुम में से कितने लोगों को zip फंक्शन पता है पाइथन में? नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं. आई जस्ट वांटेड टू टेक zip फंक्शन फॉर एग्जांपल. डजंट मैटर. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है lst1 और आई एम कॉलिंग दिस लिस्ट एज r, and this list is, let's say, 55 0 0 55. ठीक है. मेरे पास सेकेंड लिस्ट है ग्रीन लिस्ट. लेट्स से 0 55 0 and 0. Again there are four numbers, and I have another list B with values as 0 comma 0 comma 55 comma 0. So for your understanding and better readability, मैं इसको थोड़ा ठीक से डिस्प्ले करता हूँ. So these are three lists R, G, and B. These are three lists R, G, and B with these values 255 0 0 255, something like this. Now what I'm doing, I'm creating a Z using zip. I'm creating a Z using zip. So zip को मैं क्या पास कर सकता हूँ? Can I pass something like this? R comma G comma B, R comma G, G comma B, and let us print this Z. Now this is a zip object at location, something like this. So here, if I'll go with a for loop like something like this, let's say for x in z, print x. तो अगर तुम लोग इसको ठीक से देखोगे तो क्या देखो, 255 0 0, ये जो है ना 255 0 0, ये बना उसका फर्स्ट एंट्री. 0 255 0, ये उसका बना सेकंड एंट्री. 0 0 255, उसका क्या बना? थर्ड एंट्री. एंड 255 0 0, ये उसका क्या बना? फोर्थ एंट्री. सो फर्स्ट वैल्यू जो ये कॉलम है, ये आर, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्लास, आर यू विथ मी टिल नाउ? Yes. एवरीवन इज विथ मी? गुड. ओके. सो आर, जी और बी तीनों लिस्ट में से पहला पहला वैल्यू लिया, ये पहला एंट्री बना. तीनों लिस्ट से सेकंड वैल्यू लिया, सेकंड एंट्री. तीनों लिस्ट से थर्ड वैल्यू लिया, थर्ड एंट्री. और तीनों लिस्ट से फोर्थ वैल्यू लिया, फोर्थ एंट्री, एंड सो ऑन. ठीक है. सो लेट्स से तुम लोग को सबको पता है कि एनी कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर, जी एंड बी. एनी कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ R, G, and B. That is red, green, and blue. Am I right? Any color is a combination of R, G, and B. Red, green, and blue. So now मुझे क्या करना है? जो रेड कलर है उसको डिस्प्ले करना है, और मतलब रेड कलर को शूट करना है, और ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को शूट नहीं करना है. मुझे रेड कलर के ऑब्जेक्ट को शूट करना है एंड ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को शूट नहीं करना है. सो कैन आई फिल्टर आउट विच ऑब्जेक्ट्स आर रेड ऑब्जेक्ट्स, विच ऑब्जेक्ट्स आर रेड ऑब्जेक्ट? तो फिल्टर lambda, which is taking, let's say, x as an argument. This is a filtering condition which I'm going to apply, and that is my zip. That is my zip. So can I do something over here? Can I take something like this? X of 0 double equal to 255. Hence I want to check whether the first value is 0 or not. And let's say convert that thing into, let's say temp is equal to, I want to convert this thing into a list. And let's print the value of temp.
Clear? So what we are doing, let's say if a first value is 255 means ऑब्जेक्ट का कलर रेड है. ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है? रेड है. लेट मी प्रिंट रेड ऑल्सो. Convert this thing into a list format before printing. See, your first entry, second entry, third entry, and fourth entry. So we all know that any object or any color is consisting of three primary colors: red, green, and blue. So red, green, and blue. So अगर first value 255 और बाकी दो वैल्यू 0 मतलब ये रेड कलर है. सेकंड वैल्यू 255 है, बाकी दो 0 मतलब ग्रीन कलर है. लास्ट वैल्यू 255 है, बाकी दो 0 मतलब वो ब्लू कलर है. So according to that logic, this first thing and last thing is a red object. According to this logic, this first thing and last thing is a red object, whereas this is a green object and this is a blue object, whereas this is a green object and this is a blue object. So can I filter out like कि ये इसको कौन से रेड ऑब्जेक्ट है. सो यूजिंग दिस आई कैन फिल्टर आउट कौन से रेड ऑब्जेक्ट है. एंड then you can decide whether to shoot it or not. Then you can decide whether to shoot it or not. ये रेड ऑब्जेक्ट है तो मुझे इसको शूट करना ही है. सो कैन यू ट्राई दिस थिंग यूजिंग फिल्टर मेथड. यस. तुम लोग बोलोगे सर सिर्फ अगर मैप से यूज करना है तो हम लोग सिर्फ मैप से कर सकते हैं कि हम लोग इसको. तो मुझे मैप से करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, लेट्स से मैप और आई हैव अ लैम्बडा फंक्शन which takes x as the argument. Sorry, colon यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा. And here it's something like this: x of 0 डबल इक्वल टू अगर 55 है तो क्या रिटर्न करना है? क्वेश्चन मार्क. लेट्स से हिट कोलन मिस. ऐसा कुछ सिंटेक्स होता है क्या पाइथन के अंदर? एनीवन? ऐसा तो कोई सिंटेक्स होता नहीं है. बट जो यहाँ पे मैं करने की कोशिश कर रहा था उसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं ना. सो पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर होता है क्या? यस क्लास. पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर होता है क्या? हाँ टर्नरी. यस होता है कि नहीं होता है? तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं पाइथन में? Is it something like this? If x of 0 double equal to 55, then return this or something like that. ऐसा कुछ होता है क्या? In this case, I'll return hit, else I'll return miss. ऐसा कुछ होता है क्या? Hit, miss and hit. So पहला वाला जो था, okay, let me print z also in the form of list. तो पहला वाला जो है क्या गड़बड़ हो गया अभी? यस. तो अगर पहला वाला चेक कर रहे हो तुम लोग, देखो कैसे हो रहा है. पहला वाला रेड है, लास्ट वाला रेड है, तो दोनों को बताया हिट करना है. और बीच वाला ये ग्रीन है, ये वाला ब्लू है, इसको हम लोग हिट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे. सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन रेड कलर, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी हिट. एंड अदर देन रेड कलर का दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग को क्या करना है? मिस करना है.
सो टी से पता चल गया अपने को कि हाँ भाई कौन सा ऑब्जेक्ट को हिट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट को मिस करना है। ये जो फिल्टर है ये बताएगा कि सिर्फ कौन सा ऑब्जेक्ट रेड है या कौन सा ऑब्जेक्ट रेड नहीं है। ये वाला चीज बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेड है या नहीं है, सो ये ऑब्जेक्ट रेड है। और जो सेकंड वाला है वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि भाई हिट करना है या मिस करना है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू विद हेल्प ऑफ लैम्बडा कैलकुलेशन एंड सो ऑन। सो यहाँ पे मैंने सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं, बट इन रियल टाइम these examples will be replaced by mathematical equations. In real time these examples will be replaced by mathematical equations. Sure class, any doubt in this thing? Any doubt class? No doubt? Sure. Okay, good. So what do you know about coroutines? सर यूनिटी में किया है गेम डेवलपमेंट। ओके गुड। इट्स कोर रूटीन आई एम आस्किंग अबाउट कोर रूटीन। अमन मैंने क्वेश्चन पूछा, अमन ने क्वेश्चन रिटर्न क्वेश्चन पूछा, व्हाट सर आई एम आस्किंग अबाउट डू यू नो व्हाट इज कोर रिटन? Core routine is a very basic thing and it is something which is regularly used in your day-to-day life. Core routine is something which is regularly used in your day-to-day life. So तुम लोग अभी विंडोज चालू करते हो, एम आई राइट? तुम लोग जब विंडोज चालू करते हो तो तुम्हारा एंटीवायरस जो है वो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चलता रहता है या बीच में चलता है बीच में रुकता है? यस क्लास। सी दिस इज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम आवर थियरी चैप्टर, बट बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत खतरनाक लेवल पे दिया है। मतलब वो एक्सप्लेनेशन में तुमको बताऊं, मतलब वहाँ पे एग्जांपल लिया उन लोगों ने और वो कंफ्यूजन ज्यादा करता है इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनेशन। गुड विनोद, इट इज लाइक कि विकी से लिया एग्जीक्यूशन टू बी सस्पेंडेड एंड रिज्यूम, दैट्स ओके, आई गॉट इट, बट कैन यू टेल मी वन प्रॉपर एग्जांपल? तुम लोग अभी सी तुम लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल। अभी तुम लोग विंडोज पे वगैरह रहते हो, बराबर है? तुम में से अगर कोई मशीन, अगर कोई स्टूडेंट विंडोज के मशीन पे बैठा रहेगा ना, तो तुम लोग एक काम करो, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करना। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। तुम लोग कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करोगे ना तो टास्क मैनेजर दिखेगा। सी नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन अ प्रॉपर लेमन्स लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो तुम लोग टास्क मैनेजर ओपन करोगे, तुमको पता चलता है कि कितना सीपीयू यूज हो रहा है, कितना मेमोरी यूज हो रहा है, कितना डिस्क यूज हो रहा है एंड सो ऑन। तो तुम लोग अगर चेक करोगे ना तो तुम्हारा एंटीवायरस ये सब सारी चीजें हैं, उसका प्रायोरिटी कौन से लेवल पे रहता है? प्रायोरिटी उसका हाई रहता है कि सेकंड लेवल पे रहता है? फॉर एग्जांपल तुम लोग अभी कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, और तुम लोग बोलोगे मेरा एंटीवायरस का प्रायोरिटी हाई होना चाहिए, और तुम लोग बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड कर रहे हो, बैकग्राउंड में तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ डाउनलोड कर रहे हो, और यहाँ पे तुम लोग कोडिंग कर रहे हो, तो क्या होगा? एंटीवायरस जिसको तुम लोग डाउनलोड करोगे उसको स्कैन भी करेगा ना। सपोज तुम लोगों ने 50 MB का या लेट से 500 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, और एंटीवायरस ने डिसाइड किया भी ये 500 MB को मेरे को स्कैन करने का है, और उसने पूरा का पूरा सीपीयू ले लिया या पूरा का पूरा डिस्क यूटिलाइजेशन ले लिया, तो तुम लोग कोड रन कर पाओगे क्या तुम्हारा? बाय एनी चांस तुम लोग तुम्हारा कोड रन कर सकते हो क्या? देयर इज नो चांस ऑन दिस अर्थ दैट यू विल बी एबल टू रन योर कोड। क्यों? या तो उसने पूरा सीपीयू लेके बैठा है या फिर पूरा डिस्क लेके बैठा हुआ है। डिस्क मीन्स डिस्क आईओ, रीड राइट ऑपरेशंस।
अगर वो इतने ज़्यादा बढ़ गए तो तुम्हारा सिस्टम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम स्कैनिंग होना भी ज़रूरी है। तुम लोग बैकग्राउंड में तो तुम्हारा एंटीवायरस भी चलना चाहिए ना। तो ये सबको बोलते हैं को रूटीन्स। ये सबको क्या बोलते हैं? को रूटीन्स। मीन्स व्हाट? जब तुम्हारा सिस्टम चालू होता है तो अलग अलग रूटीन्स को चालू करके छोड़ देता है वो। अलग अलग रूटीन्स को चालू करके छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस बैकग्राउंड में चलता रहेगा, तुम्हारा व्हाट्सएप वगैरह सब चलता है बैकग्राउंड में चलता रहता है। आजकल तो मतलब बच्चों का ऐसा है कि व्हाट्सएप मतलब अरे व्हाट्सएप बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया, इट्स लाइक कि एंड ऑफ अ लाइफ। ऐसे कैसे चलेगा? तो सब लोगों का चलता रहता है ना, सिस्टम बंद हो गया, बैकग्राउंड में सब चल रहा है। तुम्हारे इंस्टाग्राम के अपडेट्स तुम लोग बैकग्राउंड में देख रहे हो, तुम्हारा व्हाट्सएप चल रहा है बैकग्राउंड में। और क्या यूज करते हो बैकग्राउंड में तुम लोग? सो क्लास अभी तुम्हारे जनरेशन का, नाउअडेज 3 साल में जनरेशन चेंज हो जाता है। सो तुम्हारे जनरेशन का मोस्ट फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? इंस्टा। इंस्टा छोड़ के भी और कोई दूसरे को प्लेटफॉर्म पे है क्या कोई? प्लीज फेसबुक मत बोलना। रेडिट। रेडिट किसके लिए होता है? व्हाट इज एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ रेडिट? रेडिट, लिंक्डइन, स्नैपचैट। कोरा भी रहा है यार, भगवान कोरा कौन बैकग्राउंड में चेक करता रहता है? अनुराग तू करता क्या है? यू आर ऑड मैन आउट, इसको निकाल दो बाहर। कोरा। इट्स लाइक यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन योर लाइफ दैट यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन कोरा। बैकग्राउंड में कोरा चलता रहता है। मैंने क्वेश्चन डाला देखने का है बस, अभी किसका आंसर आ रहा है? नेक्स्ट लेवल। अनुराग गर्लफ्रेंड है तेरी? कितने क्वेश्चन पूछता रहेगा? ठीक है जाने दो, फॉरगेट अबाउट, जस्ट जोक। टिकटॉक था। देशद्रोही। हे भगवान, विनोद शांत हो जाओ। लेट्स कम टू द पॉइंट। देशद्रोह तक चले गए हम लोग यार। ठीक है। सो क्लास मॉरल ऑफ द स्टोरी सी, तुम्हारा बैकग्राउंड में इंस्टा चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, ये सब चीजें चल रही है। अभी तुमको क्या लगता है वो सबका से हाई प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? आई नो अकॉर्डिंग टू यू इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप दे आर हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, बट व्हेन इट कम्स टू सिस्टम, तुम लोग कोडिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा फ्रंट पे जो ऐप चल रहा है यूआई फ्रंट साइड पे, वो कौन सा है तुम्हारा? डेफिनेटली कोई कंपाइलर रहेगा। सो अभी तुम लोग सोचो कि अगर और उसके बीच में तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे ऑटो डाउनलोड ऑन करके रखा है। सो जब भी कुछ भी डाउनलोड होगा, या तुम लोगों ने बैकग्राउंड में साउंड्स डाउनलोड पे लगा के रखा है, ये सब चलता रहेगा। तुमको क्या लगता है बैकग्राउंड में कुछ एंटीवायरस सब भी चलता रहेगा? तुमको पता है तुम्हारा विंडोज विंडोज का एक रिकवरी सिस्टम भी रहता है। फिर तुम लोग बहुत बार एंड्रॉयड फोन पे या इस पे ऑटो बैकअप कर देते हो। इट्स लाइक कि अगर मेरा कुछ आया तो बैकअप करेगा, फोन गया कुछ भी हुआ तो भी मेरा लास्ट मोमेंट तो बैकअप रहता है। तो ये सारी चीजें कैसे चलती रहती है? ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती ही रहती है। बट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको रहता है? मेन टास्क को रहता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको रहता है? मेन टास्क को रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम लोग मूवी देख रहे हो और एंटीवायरस चल रहा है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको रहेगा? तुम्हारी मूवी का जो डिकोडिंग चल रहा है, मूवी का हार्ड डिस्क से रीड करने का है, यहाँ पे डिस्प्ले करने का है, वो सब चल रहा है, उसको हाई प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन बाकी भी सारी चीजें उसका क्यों चलती रहती है ना, उसको बोलते हैं को रूटीन्स। उसको क्या बोलते हैं? को रूटीन्स। तो सपोज अभी तुम लोग कोई कोडिंग रन कर रहे हो और कोई बच्चा है एकदम ग्रेट लेवल पे, उसने फॉर लूप लिखा, नहीं उसने वाइल लूप लिखा, बट उसका वाइल लूप बहुत लंबा चल रहा है, तो सीपीयू टाइम ज्यादा लेगा, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा तो मेमोरी भी ज्यादा लेगा ना। तो इस केस में क्या होगा? तुम्हारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम बैकग्राउंड में एंटीवायरस को रन कर पाएगा क्या? या बैकग्राउंड में वो डाउनलोड को उतना स्पीडली रन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या करेगा? या तो उसको रिसोर्स कम कर देगा या उसको पॉज पे डाल देगा। या तो उसके रिसोर्स कम करेगा या फिर उसको पॉज पे डाल देगा। और जब उसको रिसोर्स मिल जाएगा तो उसको वापस रिज्यूम कर देगा, तो उसको वापस उसको रिज्यूम करेगा। नहीं तो राउंड रॉबिन ऑर्डर। तुम लोग तुम्हारा अगर ये चेक होगे, क्या चेक करोगे? टास्क मैनेजर चेक करोगे
और लेट से तुम लोगों ने सीपीयू पे क्लिक किया कि यू वांट टू सॉर्ट द प्रोसेसेस बेस्ड ऑन सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो तुम लोग चेक कर लेना। और तुम लोग बहुत सारे प्रोसेस रन कर रहे हो ना, तो कभी कोई किसी प्रोसेस का सीपीयू 0% होता है, फिर 1% हो जाएगा, 2%, फिर वापस 0% हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, वो जो तुम्हारा सिस्टम है कभी उस प्रोसेस को फोरग्राउंड में लेते हैं, कभी बैकग्राउंड में डाल देता है, बट टर्मिनेट कर रहा है क्या, वो नहीं कर रहा है। ऑल दीज आर को रूटीन्स, ऑल दीज आर को रूटीन्स। तुम लोग जब क्रोम चालू करते हो तो आज के डेट में ऐसा कोई है ही नहीं जो 2 या 4 टैब पे काम करता है, 10-12 टैब ही चलते रहते हैं तुम्हारे। कोई अगर पुराना भक्त रहेगा तो फेसबुक पे बैठा रहेगा कि ओल्ड इज ऑल्सो गोल्ड, फेसबुक पे रहेगा, इंस्टाग्राम भी चलता रहेगा, इधर लिंक्डइन चल रहा है। भगवान मालिक क्यों लिंक्डइन पे बैठा है, बच्चा अभी सेकंड ईयर में ही है, बट ठीक है, इट्स गुड, यू आर इन लिंक्डइन, इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स, अपडेट्स एंड ऑल। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बाजू में रेडिट चल रहा है, इधर मस्त यूट्यूब पे कुछ गाने बज रहे हैं, या दूसरे कुछ अमेजन म्यूजिक पे गाने बज रहे हैं, यहाँ पर बच्चा काम कर रहा है, इधर अलग ही टैब पे ऑनलाइन कोडिंग कर रहा है, क्यों, आईडी कंपाइलर नहीं चाहिए। अब इतने सारे कोर रूटीन साथ में चलते रहेंगे ना, और जो नहीं चाहिए उसको बीच में रोक देने का। तो कोर रूटीन मतलब क्या होता है, कोर रूटीन इज समथिंग विच इज स्टार्टेड एट द बिगिनिंग। तुम्हारा कोड चालू हुआ तो 3-4 रूटीन चालू कर देगा, तुम्हारा सिस्टम चालू होगा ना प्रोग्राम, तो 3-4 रूटीन चालू कर देगा, और 1-2 रूटीन बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। फिर कभी ये चलेगा, कभी वो चलेगा, या दोनों साथ में चलेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी हो सकता है, कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी, कौन सा कम प्रायोरिटी, एंड सो ऑन। तो ये होते हैं को रूटीन्स। और को रूटीन का हर एक लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स होता है। को रूटीन का हर एक लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स होता है। तो मैं पर्टिकुलर अभी कोई एग्जांपल नहीं लूंगा कि को रूटीन तुम लोग कैसे कर सकते हो एंड सो ऑन, बट इसको तुम लोग को रूटीन्स बोलते हो। हेलो, एनी डाउट क्लास, एनी डाउट? नो डाउट, गुड। मैं जस्ट अभी नेट पे सर्च किया कि कोई कोड रूटिंग का छोटा सा एग्जांपल है क्या। सो एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, किसमें से लिया है, ओके, greek4geeks.com, geeks4geeks.com से लिया एक छोटा सा एग्जांपल, मैं यहाँ पे रन करता हूँ। पाइथन का एग्जांपल है। सो व्हाट इट सेज इज दिस, यहाँ पे एक रूटीन है, प्रिंट नेम। सो इट्स लाइक कि सर्चिंग प्रीफिक्स डॉट फॉर्मेट। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी इसको कुछ इनपुट देगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जब तक ट्रू, मतलब एक वाइल ट्रू, मतलब इनफाइनाइट लूप हो गया ना ये। इफ प्रीफिक्स इन नेम इज इक्वल टू इल्ड, ए प्रीफिक्स इन नेम, वो उसको नाम को प्रिंट करेगा एंड सो ऑन। सो कॉलिंग अ सब रूटीन, कौन सा कॉल कर रहे हैं, देखो सब रूटीन प्रिंट नेम, किसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, डियर पे। बाद में नेक्स्ट कर रहे हैं, तो जब नेक्स्ट कॉल होगा तो हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, अतुल। बाद में क्या आएगा, डियर अतुल एंड सो ऑन। सो दीज आर को रूटीन्स। सर्चिंग फॉर व्हाट, डियर। सो ये डियर को करेगा, दिस इज अ प्रीफिक्स, इसलिए वो सर्च कर रहा है। और इसमें अतुल, अतुल भेजा, पहले इसमें क्या भेजा, अतुल, और दूसरे क्या भेजा, डियर अतुल। बट उसको सर्च किसको करना है, डियर अतुल को। तो ये वाला प्रिंट हुआ क्या, नहीं प्रिंट हुआ। अगर उसको सर्च करना है, डियर को सर्च करना है ना, सो लेट से मैं और एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, कॉपी एंड पेस्ट। लेट से यहाँ पे नाम लिखता हूँ अमन, एंड दिस इज लेट से डियर अजय। तो डियर अतुल, डियर अजय प्रिंट किया, और ये तुम्हारा प्रोग्राम रन हुआ है क्या, तुम्हारा प्रोग्राम खत्म होता है क्या, ये देखो ये बैकग्राउंड में चलता रह रहा है, ये कोड बैकग्राउंड में चलता रह रहा है। और वो चेक क्या कर रहा है कि कोई इसको कॉल कर रहा है क्या, कोई इसको कॉल कर रहा है क्या, हाउ यू आर कॉलिंग इट, यूजिंग coroutines dot next, यूजिंग दिस डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, फिर इसको ये सेंड किया, फिर ये सेंड करे, फिर ये सेंड करे, फिर ये सेंड करे, एंड सो ऑन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोग यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर बॉक्स है, मतलब क्या, इट इज आस्किंग कि कर्नल को इंटरप्ट करना है, तुम लोग कर सकते हैं। सो कर्नल को इंटरप्ट कर दिया एंड सो ऑन। सो दिस इज अ को रूटीन, द कर्नल appears to have died, it will restart automatically. Good. So ये जो तुम्हारा मेथड है,
ये मेथड इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है? इनफाइनाइट मतलब क्या, कभी टर्मिनेट होने वाले क्या है मेथड? द मोमेंट वी विल कॉल दिस प्रिंट नेम, इसके अंदर जो वाइल लूप है वो खत्म होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा? एंड तक। लेकिन यहाँ के अंदर देखो कुछ लिखा है, इल्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इल्ड, मतलब इट इज वेटिंग फॉर इनपुट, इट इज वेटिंग फॉर इनपुट। तो यहाँ पे को रूटीन क्रिएट किया विद दिस नेम, और यहाँ पे हम लोग सेंड करें अतुल। को रूटीन को क्या सेंड किया? अतुल सेंड किया। अतुल सेंड किया तो इसने उसको चेक किया कि भाई जब हमने उसको कॉल किया तो इसको क्या दिया? डियर। तो क्या चेक कर रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर डियर कहीं पे है क्या? नहीं है, तो इसको प्रिंट करेगा क्या? वो प्रिंट नहीं करेगा। सेकंड क्या सेंड किया इसको? डियर अतुल, डियर अतुल। तो इसके अंदर डियर है क्या? देखो नेम, प्रीफिक्स इन नेम। प्रीफिक्स क्या है इसका? जो पहले भेजा था डियर, तो उसने डियर अतुल प्रिंट किया। फिर क्या सेंड किया उसको? रमन। रमन प्रिंट करेगा? वो नहीं करेगा। क्यों? इसके अंदर डियर नहीं है। फिर क्या प्रिंट पास किया? डियर अतुल, डियर अजय। अभी चलेगा क्या? चलेगा, यस इट विल वर्क। अभी सपोज मैं इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, और अभी इसको मैं फिर एक बार भेज रहा हूँ। दिस इज अ न्यू सेल ना, मैं इसको अभी रन कर रहा हूँ क्या? नहीं, उसको मैं भेज रहा हूँ मैं लेट से कामत, इट सेज इट इज नॉट डिफाइंड। लेकिन इसको अगर अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ, कामत, कामत आउटपुट में आएगा क्या? नहीं आएगा। सो दीज आर को रूटीन्स, मतलब जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। जो क्या चल रहे हैं? कंटिन्यूसली चल रहे हैं जब तक हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं। सो ये टर्मिनेट हुआ है क्या? इनफाइनाइट था, एंड सो ऑन। So you can create multiple coroutines in your code. You can create multiple coroutines in your code. और coroutine अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से बंद हो जाएंगे, रुकेंगे, and so on. Class, do you got the concept of coroutine? Yes. Okay, good. So जो अभी previous chapter एक है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट बचा है, and that is event handling. वो मैं next lecture के beginning में ले लूंगा. That will take with the help of Java. It's like Java में button click event और बाकी events वगैरह जो रहते हैं, वो तुम लोग कैसे हैंडल कर सकते हो, एंड सो ऑन। श्योर क्लास? Yes, sir. यस। आज हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैस्कल लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। कौन सा लैंग्वेज चालू करेंगे? हैस्कल। सो उसके और अपने थोड़ा प्रैक्टिकल्स और भी करने हैं, तो सिलेबस में जितने हैं उससे थोड़ा ज़्यादा मैं ले लूँगा हैस्कल में, बट इट्स ओके, चलेगा। सो क्लास, एनी डाउट इन टुडे सेशन? और हम लोग जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, जो अपना फंक्शनल लैंग्वेज यूनिट है, वो हैस्कल से देखेंगे। मतलब उसमें वो लॉजिक लैंग्वेज कैसे होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन। मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हैस्केल। फिर हम लोग जो मैप लैम्बडा, लैम्बडा भी है, वो भी हम लोग हैस्केल में देखेंगे। फिर हायर ऑर्डर ऑपरेशंस, फंक्शंस, आईओ स्ट्रीम्स एंड वो सब हम लोग हैस्केल में देखेंगे। सो मेरे ख्याल से हैस्केल तो अगले यूनिट में लेक्चर में खत्म नहीं होगा। वी माइट रिक्वायर वन मोर लेक्चर ऑफ 2 आवर्स, मतलब आई होप बाय नेक्स्ट वीक अपना वो हैस्केल कंप्लीट हो जाएगा। यस, बाय नेक्स्ट वीक अपना हैस्केल कंप्लीट हो जाएगा। So class, any doubt, any suggestion for better understanding or to improve the learning process? I'm open for your inputs and your feedback on this session also. सबको आज का मैप और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? मैप का और लैम्बडा का? Yes, sir. ओके। सो इफ यू नो दैट कॉन्सेप्ट, देन हाईस्केल में वो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। नहीं तो क्या होता है, एक नया लैंग्वेज जिसका सिंटेक्स उनको पता भी नहीं है, फेमिलियर भी नहीं है, उसमें डायरेक्टली मैप लैम्बडा देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। Aman, portrait modes in camera can use filter. I don't know कैमरे के अंदर वो कैसे implement करते हैं. That is actually their trade secret. So I cannot actually answer this thing. इतना मुझे भी नहीं पता.
सॉरी अमन फॉर दिस। सी क्लास तुम लोग को अगर अभी कुछ फ्री टाइम में करना है तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम लोग ओपन सीवी सीख सकते हो। ओपन सीवी इज फॉर इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन। ओपन सीवी का इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस, सी, जावा सब में होता है, पाइथन में भी होता है। तो तुम लोग अगर देखोगे ओपन सीवी, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ OPEN CV। ओपन स्टैंड फॉर ओपन, मीन्स इट्स ओपन सोर्स, समथिंग लाइक दैट। सीवी स्टैंड फॉर कंप्यूटर विजन। सो ये लाइब्रेरी अच्छा है। इन फ्यूचर अगर कुछ भी चीज़ें होने वाली है तो ओपन सीवी में, मतलब कंप्यूटर विजन के रिलेटेड होगी। सो इफ यू कैन लर्न ओपन सीवी इट्स गुड फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, क्योंकि तुम लोग को इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट है बट वो इलेक्टिव है, एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट का तुमको पता है प्रैक्टिकल्स होते नहीं है, थ्योरी ही होता है सिर्फ। सो इफ यू लर्न ओपन सीवी ऑन योर ओन, इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा तुम लोग सर्च करो, एंड इफ टाइम परमिट्स देन वी कैन हैव time permits and college permits, both are important thing, then we can have some, let's say a course on OpenCV, let's say 10 hours course, 2 hours each, evening 6 to 8, something like that, you are on OpenCV using Python, something like that, but not immediately now, देखेंगे बाद में कभी कर सकते हैं तो, but I'm not promising it, I'm just telling you कि ये अच्छा है, तुम्हारे पास अगर टाइम है तुम लोग इसको देख सकते हो, OpenCV using Python. So class, if you have any suggestion then I'm all ears, or any comment. Otherwise, that's it for today. Tata, bye bye, see you. And Allah Hafiz. See, question कौन है ये? हाँ, Mitesh, OpenCV is not face recognition. OpenCV you can use it for face recognition. OpenCV is like it's a, the way database is a subject, तो वैसे computer vision is a subject, and OpenCV is a library for computer vision. So you can do image face recognition using OpenCV. आज देखते हैं आज कौन एंड तक रुकता है. Special cases. Thank you, sir. Welcome.